हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल्स 567। तो आज हम लोग क्लास 9th साइंस द मोशन चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चन एक क्विज की फॉर्म में करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्विज को स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट masses falling freely near the surface of the moon would, and their options are A. have similarities at any instant, B. have different accelerations, C. experience forces of same magnitude, and D. undergo a change in their inertia। अगर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। सो योर 10 सेकंड टाइमर इज स्टार्ट नाउ। Time's up, friends. So the correct answer of the question is option A, have same velocities at any instant। तो आइए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑन द मून और एनी सेलेस्टियल बॉडी ऑल ऑब्जेक्ट्स इन फ्री फॉल एक्सेलरेट एट द सेम रेट रिगार्डलेस ऑफ मास, सो देयर वेलोसिटीज एट एनी इंस्टेंट विल बी द सेम। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हियर इज द सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी and your options are is same on equator and poles, B is least on poles, C is least on equator, and D increases from pole to equator। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं एंड योर 10 सेकंड टाइम स्टार्ट नाउ। So the correct answer of this question is C is least on equator, because as you know the value of G is slightly less at the equator due to the Earth's shape and rotation। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज F। If the masses of both objects are halved without changing the distance, the gravitational force becomes, आपकी ऑप्शंस हैं F by 4, B F by 2, C F and D 2F। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मालूम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं मालूम तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। सो योर 10 सेकंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up, friends. So the correct answer of the question is option A, F by 4. Because gravitational force is proportional to the product of the masses. Halving both masses makes the product 1/4. So force becomes F by 4. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हियर इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। The universal law of gravitation states that the force between two objects is, और इनके ऑप्शंस हैं directly proportional to the sum of their masses, B inversely proportional to the product of their masses, C directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, और D none of these। तो दोस्तों, हमेशा की तरह अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करें। If no, then your 10 second time starts now। Time's up, friends. So the correct answer of this question is option C, directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। Now see the correct explanation. This is the mathematical statement of Newton's universal law of gravitation। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून सरफेस इज, एंड आपके ऑप्शन है A 1/3 of its weight on earth, option B 1/5 of its weight on earth, option C 1/6 of its weight on earth, and option D 1/2 of its weight on earth। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं एंड जो 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। So the correct answer of this question is option C 1/6 of its weight on earth। Explanation:
The moon's gravity is about 1/6 that of Earth's, so objects weigh less there. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड हेयर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन. द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड ऑन, एंड आपके ऑप्शन है ए देयर मासेस, ऑप्शन बी देयर सेपरेशन, सी द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड डी द मीडियम बिटवीन टू बॉडीज. तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 10 सेकंड का टाइम मिलेगा. सो योर टाइम स्टार्ट नाउ. Time's up, friends. So the correct answer of this question is option D, the medium between two bodies. Because as we already know, gravitational force is independent of the medium between the objects. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दैट मीन्स 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. सो हेयर इज द क्वेश्चन नंबर 7th ऑन योर स्क्रीन. ऑब्जेक्ट्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू, एंड आपके ऑप्शंस हैं ए मास, बी वेट, सी ग्रेविटी एंड डी बॉयोएंसी. तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं. एंड योर 10 सेकंड टाइम एंड स्टार्ट. So the correct answer of this question is option C, gravity. तो आइए जरा ग्रेविटी का डेफिनेशन देख लेते हैं. ग्रेविटी इज द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. अगर फ्रेंड्स आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट करें पार्ट 2, और आज के सभी क्वेश्चंस को एक बार फिर से ज़रूर सॉल्व करें. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.